जो लोग हाफ पद्मासन में कुछ लोग पद्मासन भी लगा रहे हैं, आई थिंक सो काफी देर तक नहीं बैठ पाएंगे, देन यू कैन चेंज योर पोस्चर। शुरू करने से पहले हम लोग पूरे ध्यान को फर्स्ट कंसंट्रेट करें अपने बॉडी, अपने टूवर्ड्स द फिजिकल बॉडी, अपने माइंड। सो ऑल ऑफ यू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, open your specs and keep it down. Spine should be straight. Close your eyes. आंखों को बंद करते हुए अपने ब्रीथ पे कंसंट्रेट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली and then exhale. आंखों को बंद रखते हुए लंबी और गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली and then exhale. And we will start with the Om chanting. आंख बंद करते हुए ही अपने श्वास पे ध्यान रखते हुए हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। टेक डीप ब्रेथ। Again, take deep breath. Again, take deep breath. Without open your eyes, feel the vibrations within your mind, your physical body. Inhale deeply and then exhale. नाक से ही लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Inhale deeply and then exhale. Then rub your palms nicely. And then give palming tries. Slowly put your hands down. Now you feel better, I think so. So now we start with the breathing exercise so that ki more and more oxygen आप अपने towards your body, अपने lungs की capacity को increase कर पाएं. So all of you interlock your both the hand fingers. नहीं. Interlock your both the hand fingers and keep it in front of your chest. Keep your spine straight. And then लंबी सांस लेते हुए inhale and stretch your both the hands in front of your body. And feel the stretchings to your both the arms and your spine. Exhale, bring back near your chest. Again, inhale and stretch it. And then exhale. This time we have to take it above your head. Inhale and stretch your both the hands above your head. This time again, just feel the stretchings to your both the arms, your spine, hip joints, and then exhale and then bring back near your chest. Again, inhale and stretch it up. And then exhale. Slowly bring back near your chest. Relax. Slowly put your hands down. This time we will do the bending. So everyone just keep your right hand on your left knee. Inhale and raise your left hand up. And then exhale and bend towards your right side. Exhale and then bend. जितना बेंड कर सकते उतना ही बेंड करना. एल्बो शुड बी स्ट्रेट. कोशिश कीजिएगा अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखने का. इनहेल सेंटर फिर से सांस लेते हुए सामने की तरफ आ जाएं. सिंपल पोजीशन. चेंज योर हैंड. दिस टाइम लेफ्ट हैंड कीप इट ऑन योर राइट नी. एंड देन सांस भरते हुए रेज योर राइट हैंड अप एंड देन एक्सहेल एंड देन बेंड. ये आपके पूरे साइड मसल्स को काफी स्ट्रेच आउट करता है. एंड देन इनहेल एंड देन सेंटर.
Again, one more round. The same, right hand keep it on your left knee and then inhale and raise your left hand up. And then exhale and then bend. Inhale, same toe. कोशिश कीजिएगा सब कोई अपने सांस पे कंसंट्रेट करेंगे. Change your hand. One more round from the opposite side. Inhale and stretch your hand up and then exhale. सांस छोड़ते हुए you have to bend it. Inhale, same toe. Relax. Slowly put your hands down. Close your eyes again. Close your eyes again, all of you. Take a deep breath. योग का मीन्स मतलब अपने श्वास के प्रति सजगता. तो जितने हम आंख बंद करके अपने ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमारा बॉडी उतनी ही जल्दी कवर करेगा, हील करेगा, एनर्जेटिक होगा. ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग आईज को क्लोज करते हुए अपने ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. Relax, slowly open your eyes. The next one we will do start with the protocol, neck movements. So first सबको अपने स्पाइन को सीधा रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? And then both the hands keep it on your knees again. First take a deep breath, लंबी सांस लेते हुए पहले. And then exhale and press the chin on your chest. Exhale and then down. सिर्फ neck movement होगा. Spine बिल्कुल सीधी. Inhale up and back maximum as you can, पीछे की तरफ. Again exhale and down. Press the chin on your chest. अपने chin को जितने chest के पास आप प्रेशराइज कर सकते हो. ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी काफी अच्छा है, नेक मूवमेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है. Again inhale and up and back. Come to the center. The next one is twisting. Exhale and just twist your neck towards your right side. Inhale, center. Opposite exhale and then twist. Inhale, center. Opposite exhale and then twist. Inhale, center. Opposite exhale and then twist. Inhale, center. The next one we will do the bending. Exhale and then bend your neck towards your right side. Exhale and then bend. Inhale, center. Opposite exhale and then bend. सांस छोड़ते हुए. फिर से सांस भरते हुए सामने की तरफ. Again exhale and then bend. Inhale, center. Opposite exhale and then bend. Inhale, center. Relax. Close your eyes again. Take deep breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. The next one is shoulder movements. So first, all of you, both the hand fingers, keep it on your shoulder. Inhale and raise your both the elbows up. Maximum as you can. जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं. Exhale and then down. सामने की तरफ से ऊपर उठाइएगा. Inhale and up. शोल्डर जॉइंट्स, फ्रोजन शोल्डर्स, ये सब के लिए काफी इफेक्टिव है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग बैठ कर ही वर्क करते हैं और हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सामने की तरफ बेंड होता है. एक्सेल एंड डाउन. द नेक्स्ट वन इज बोथ द एल्बोज कीप इट टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. Inhale and stretch it back maximum as you can. Expand your chest. Inhale, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ. Exhale, bring back near your chest. Again, inhale and stretch. Exhale and center. Slowly put your hands down and relax yourself. Take deep breath. Inhale deeply and then exhale.
रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम लोग जो करेंगे आसन वो खड़े होके, सो ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। कीप योर फीट टुगेदर, दोनों पैर को सटा कर रखेंगे। अगेन आंख बंद करते हुए, फिर से आंख बंद करते हुए अपने पूरा ध्यान आपके फिजिकल बॉडी की तरफ। लंबी सांस, इनहेल डीपली एंड देन एक्सहेल, inhale deeply and then exhale. Relax, slowly open your eyes. The next one we will do the Kati Chakrasana. जितना आपका shoulder है, same gap between your both the feet. जितना आपका shoulder broad है, the same gap between your both the feet. Inhale and stretch your both the hands to the shoulder level. The name of this posture is Kati Chakrasana. की Kati means कमर, आपके कमर के लिए काफी अच्छा है. Then exhale and twist towards your right side. Your right hand keep it on your left shoulder, and left hand keep it on your right side of your waist joint. And just look at your back side. Look at your back. Nobody will raise your heels. Look at the back. Inhale, center, opposite. Exhale and then twist. Look at the back. Maximum as you can. सर भी पीछे की तरफ. बॉडी के साथ साथ आपका सर भी पीछे की तरफ ट्विस्ट होगा हल्का. Inhale, center. अगेन वन मोर राउंड. हर पोस्चर्स को हम लोग दो बार रिपीट करेंगे सो दैट कि आपको मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग फील हो. एक्सेल एंड देन ट्विस्ट. ये आपके कमर को काफी अच्छा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. इनहेल, सेंटर, अपोजिट. एक्सेल एंड देन ट्विस्ट. जिनको शोल्डर में काफी पेन है वो लोग नहीं करेंगे. किसी का फ्रोजन शोल्डर भी आई थिंक सो. इनहेल एंड सेंटर. Relax. Slowly put your hands down. Slowly put your hands down. The same पैर का जो पोजीशन है वही रहेगा. काफी आपने स्प्रेड कर रखा है. Yes. The next one is उत्कट आसन, चेयर पोज. ये नी के लिए काफी अच्छा है, बट अगर जिनको नी में प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे. ठीक है. So inhale and stretch both the hands up, both the arms very close to your ear, and then exhale and then bend half, imaginary chair. Yes. Inhale and up. बहुत ज्यादा स्टे नहीं करेंगे. अगेन एक्सेल एंड देन डाउन. ब्रीथ पे फोकस. यहाँ पे जब आप झुक रहे हो तो आपका बॉडी एक्सेल, आप एक्सेल करोगे. इनहेल एंड आउट. रिलैक्स. स्लोली पुट योर हैंड्स डाउन and then again take a deep breath. Close your eyes. Relax yourself. Inhale deeply and then exhale. Inhale deeply and then exhale. The next one we will do the Tadasana. So everyone interlock your both the hand fingers and keep it top of your head. And then inhale and stretch your whole body and stand on your toes. सांस खींचते हुए, सांस लेते हुए अपने बॉडी को पूरी खिंचाव देते हुए अपने टोज पे खड़े होंगे. दिस इज गुड फॉर योर स्पाइन. ये पूरे आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रेंथन देता है, स्ट्रेच आउट करता है, आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन देता है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन देता है. एक्सेल एंड देन डाउन. छोटे बच्चों में इंक्रीज करता है उनके हाइट. अगेन इनहेल एंड स्ट्रेच इट अप and feel the stretching through your whole body. And then exhale and then down. Relax. Slowly put your hands down. The next one we will do the tree pose or Vrikshasana. Everyone just fold your right leg and keep it on your left thigh. जो लोग थाई पे नहीं भी रख सकते हो, अपने काफ मसल्स के पास में या नी के पास में भी रख सकते हो.
calf muscles के पास में भी रख सकते हैं. Inhale and just raise both the hands up and look at the one center point and balance. Throughout this you can increase your concentration power. Sometimes हमारा mind काफी distract हो जाता है, divert हो जाता है. That time you can do this posture and just concentrate yourself. And then exhale and then down. Put your legs down. Change your side. Hold your left leg and keep it on your left thigh. So right thigh. And then inhale and raise your body hands up, palms together, stretch your body up. Very nice. Exhale and then down. Again, one more round we will do it. Fold your right leg and keep it on your left thigh. Inhale and stretch it. Forcefully नहीं करना है, आराम से करना है. जितना आप पैर उठा सकते हो उतना ही उठाना है. Exhale and then down. Opposite leg. Inhale and stretch it up. किसी एक चीज को फोकस कीजिए सामने, ऑटोमेटिकली यू कैन कंसंट्रेट और यू कैन बैलेंस योर बॉडी. And then exhale and then down. Relax. Slowly put it down. Slowly put it down. Relax. Keep your feet together. The next one we will do the Padhast Asana. So inhale and raise your both the hands up. And then exhale and then down. Maximum as you can. बहुत ज़्यादा over bend नहीं होना. जितना आपका body allow करता है, just उतना ही आपको bend करना है. But इसमें focus करना है कि आपका knee bend नहीं होना चाहिए. Knee should be straight. And then exhale and then inhale and up. ये आपकी internal abdominal muscles को, lower abdominal muscles को strengthen देता है, stimulate करता है आपके all internal organs. Again inhale and stretch both the hands up. बट जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है या स्पॉन्डिलाइटिस है, ये लोग नहीं करेंगे, सामने की तरफ नहीं झुकेंगे. एक्सेल एंड देन डाउन. Inhale and up. Relax. Slowly put your hands down. Little bit break. Close your eyes. Close your eyes. Take deep breath. Relax yourself. Relax yourself. Relax yourself. Take deep breath. Close your eyes. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Relax. Slowly open your eyes. The next one we will do the Ardha Chandrasana. Little bit gap between your both the feet. The same, jitna aapka shoulder broad hai, the same gap between your both the feet. Both the palms keep it on your waist joint. Hold it. And then inhale and bend back. सांस लेते हुए हल्का सा पीछे की तरफ, बहुत ज्यादा नहीं बेंड होना है. ये आपके चेस्ट, आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स, स्टमक, स्पाइन के लिए काफी इफेक्टिव है. Exhale and then come to the center. Again inhale and bend back. Then exhale, come to the center. Relax, slowly put your hands down. The next one we will do the triangle pose or Trikonasana. 2.5 feet gap between your both the feet. And then stretch your both the hands to the shoulder level and bend towards your right side. Touch your right ankle. जितना आप bend हो सकते हो, knee को भी touch कर सकते हो, ankle को भी touch कर सकते हो. जितना आपका comfortable और body जितना allow करे उतना ही bend करना है. Over bend नहीं करना है. Again I'm repeating the same. Over bend नहीं करना है. Inhale center. जिनको शोल्डर में पेन है वो लोग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इस आसन को. अगेन एक्सेल एंड बेंड. ये आपके पेल्विक बोन, आपकी साइड मसल्स, आपके लेग्स के लिए काफी अच्छा एक्सरसाइज है. लुक एट द टिप ऑफ द फिंगर. जो ऊपर की तरफ हाथ है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. इनहेल सेंटर. अगेन एक्सेल एंड बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड. ओवर बेंड नहीं करेंगे.
नी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, नी बेंड नहीं करना है. इनहेल सेंटर, opposite exhale, inhale center, relax, slowly put your hands down. Everyone come to the sitting posture, सारे कोई बैठ जाइए. Keep your leg straight, पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए. Keep your leg straight. In a comfortable pose, both the hands keep it back of your buttocks. Yes. Close your eyes. Close your eyes, everyone. Relax yourself. Legs को अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे. बिल्कुल ढीला छोड़ दे अपने पैरों को. लंबी सांस लेते हुए. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Inhale deeply. And exhale. Relax. The next one, we will do the Bhadrasana. Fold your legs, feet together. Interlock your both the hand fingers, then hold your feet tightly. And sit straight. Butterfly अभी नहीं करेंगे. Sit straight. Keep your spine straight. अपने पैरों को पकड़ के रखिए और स्पाइन को सीधा रखिए. स्पाइन को बिल्कुल सीधा. और लंबी सांस लें. Then breathe out. Breathe in. Breathe out. ये आपके लेग मसल्स को स्ट्रेंथन देता है. आपके थाइज मसल्स आपको काफी रिलैक्स भी करता है. Then do the butterfly up and down. Thighs will be up and down. बिल्कुल आराम से, forcefully नहीं. 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. And then breathe out and little bit bend forward. सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है. जितना झुक सकते हैं बस उतने ही. ओवर बेंड, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम. ओवर बेंड बॉडी को एक्सर्ट करके नहीं करना है. योगा का मतलब है बॉडी को रिलैक्सेशन देना, टॉर्चर नहीं करना. इनहेल एंड अप. Again, exhale and down. Inhale, center. Relax. Again, keep your leg straight and relax yourself. Keep your leg straight. Again, both the hands, keep it back of your buttock and shake your both the legs so that you can relax your legs. Leave it loose. बिल्कुल ढीला छोड़कर अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए रिलैक्स करें. Relax. Then everyone come to the Vajrasana. Fold your legs and sit on your heels. जिनको नी में प्रॉब्लम होगा वो काफी देर तक इस पोस्चर्स में नहीं बैठेंगे. अगर कंफर्टेबल है देन यू कैन सिट इन दिस पोस्चर. एंड एवरीवन सिट ऑन योर हील्स. टोस को फोल्ड करके नहीं रखेंगे. ठीक है. ये यही एक पोस्चर है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन वी विल डू द शशंगासन. दोनों नी के बीच में थोड़ा सा गैप, so that easily you can do it. And then inhale and raise your both the hands up. सांस लेते हुए. And then exhale and then down. Inhale and up. आराम से. Again exhale and down. ये आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है, बिकॉज जब आप सामने की तरफ सांस छोड़ते हुए सामने झुक रहे हैं तो आपके पूरे एब्डोमिनल मसल जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो प्रेशराइज हो रहे हैं. इनहेल एंड आउट. रिलैक्स. अगेन टेक डीप ब्रेथ. Inhale deeply and then exhale.
Inhale deeply and then exhale. The next one, we will do the half ustrasana. Stand on your knees. दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए सो दैट कि कंफर्टेबली आप हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हो पाए एंड फीट फ्लैट। टोज को अगर आप ऐसे करके खड़ा करके रखोगे ना तो ये आपके टोज में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। Both the palms keep it on your waist joint and then inhale and bend back. डायबिटिक लोगों के लिए काफी अच्छा है ये पोस्चर। आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स के एक्स्ट्रा फैट को भी रिड्यूस करता है, आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है ये। बिकॉज इनहेल एंड सेंटर, बिकॉज आप बेंड कर रहे हो पीछे की तरफ तो ब्लड सर्कुलेशन आपके टुवर्ड्स योर हेड की तरफ जा रहा है। अगेन कम टू द सेंटर, अगेन इनहेल एंड बेंड बैक। जितना आप बेंड कर सकते हो उतना ही, ओवर बेंड नहीं करना है, किसी भी आसन में ओवर नहीं करना। इनहेल सेंटर, relax, come to the center, again sit on your heels, again sit on your heels. Close your eyes again and take deep breath. Inhale deeply and then exhale. The next one, we will do the Mandukasana. Thumb finger inside and then feast your palms tightly. और आप थंब फिंगर अंदर जाएगा, उसके बाद मुट्ठी बंद। आपके थंब फिंगर का जो ये बोन है उसे आप अपने नेवल के नीचे बिल्कुल लोअर एब्डोमिनल मसल्स पे जस्ट प्रेस इट एंड देन एक्सेल एंड देन बेंड फॉरवर्ड। फेस सामने की तरफ, सामने की तरफ सबका फेस होना चाहिए, सामने नीचे नहीं झुकाना है। लुक फ्रंट, यस। इनहेल एंड आप सांस को रोक के रखेंगे जब आप झुकेंगे। अगेन एक्सेल एंड देन डाउन। ये आपके किडनी, पेनक्रियास, इनको काफी अच्छा स्टिमुलेट करता है। इनहेल सेंटर, साइड, यस, रिलैक्स। द नेक्स्ट वन वी विल डू द कैट कैमल पोज। ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है बट अगेन ये कुछ कुछ चीजें होती है ना जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी करोगे तो अपने आप को काफी हेल्दी रख सकते हो। कुछ कुछ आसनास मैंने स्किप किया है और कुछ कुछ मैंने एड ऑन किया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी विल डू द कैट कैमल पोज। इसके लिए आप वज्रासन में है, बस उसे खड़े हो जाइए एंड देन राइट हैंड आप अपने राइट नी के सामने में रखेंगे। बेंड योर एल्बो, बेंड योर एल्बो एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर राइट नी। एक बार सामने से करके दिखा दो सृष्टि आप। या बेंड इट, fold your right elbow and then keep it in front of your knee and then जहां पे आपका फिंगर्स खत्म हो रहा है राइट हैंड का वहां पे आपका लेफ्ट नी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन जस्ट दोनों नी के सामने में आपका दोनों एल्बो, यस। एंड देन कीप योर हैंड स्ट्रेट, सामने, सामने की तरफ देखकर दोनों एल्बोज आप स्ट्रेट करो, यस। जैसे बिल्ली को आपने देखा है या शेर को, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू जस्ट, या elbow should be straight up, elbows up, yes, yes. And then inhale and raise your body up and spine goes down. हाथ सीधा, पाम्स जमीन पे होना चाहिए, बहुत कोई फोल्ड करके रखे, हाथ सीधा। सांस लोगे तो ऊपर की तरफ आपको देखना और स्पाइन गोज डाउन, स्पाइन नीचे की तरफ दबेगा। ये हमारे स्पाइन को काफी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज मैक्सिमम हम लोग सिटिंग पोस्चर्स में ही बैठते हैं। अगेन इनहेल एंड अप and then I exhale and down. Press the chin on your chest and spine goes up. चेस्ट जो आपका स्पाइन है ऊपर की तरफ आपको उठाना है। चिन को प्रेस कीजिए चेस्ट पे और स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाइए, यस। इनहेल एंड अप, सांस लेते वक्त ऊपर फेस और स्पाइन डाउन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी एनहेंस करता है, आपके पूरे लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। फीमेल के लिए काफी अच्छा है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके स्पाइन को काफी रिलैक्स करता है। अगेन इनहेल एंड अप,
एक्सेल एंड देन डाउन। जब आप चिन को प्रेस कर रहे हो चेस्ट पे तो आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर रहा है। इनहेल एंड सेंटर, रिलैक्स, सिट ऑन अ हिल्स अगेन, sit on a heels again, close your eyes, थोड़ी देर के लिए again close your eyes and relax yourself, लंबी सांस, breathe out, breathe in, breathe out. The next one is lie on your abdomen, पेट के बल वैसे ही लेट जाएंगे जिस पोजीशन में, बस वैसे ही lie on your abdomen, वज्रासन में ही बॉडी को आगे की तरफ बेंड करके lie on your abdomen, abdomen. Cross both the arms and rest your forehead on your arms. पूरे पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए. Cross both the arms and rest your forehead on your arms. Body will be loose. Gap between your both the feet. दोनों पैर के बीच में गैप. दोनों हाथ को क्रॉस कीजिए. हेड को yes. Take deep breath. Inhale deeply and then exhale. Inhale deeply and then exhale. Inhale deeply and then exhale. Relax. Relax. The next one is the relaxation pose. Makrasana, we will do it. Both the palms keep it on your cheeks. Both the elbows keep it in front of your chest. And then exhale and then fold your legs from your back. Press your heels towards your buttocks. सांस छोड़ते हुए अपने दोनों heels को अपने buttocks की तरफ प्रेशराइज कीजिए. Inhale and then down. ये काफी रिलैक्सेशन पोज हम लोग मानते हैं. जब आप फ्री हैं या फिर काफी टायर्ड हैं तो आपके माइंड को ये काफी रिलैक्स करता है. आप अपने बेड पे भी लेट कर सकते हो. अगेन एक्सेल एंड डाउन एंड प्रेस योर हील्स टुवर्ड्स योर बटक्स. जोर से प्रेस करने का कोशिश कीजिए. देखिएगा आपके पूरे लेग्स में, आपके एब्डोमिनल मसल्स में काफी रिलैक्स आपको फील होगा. एंड देन एक्सेल एंड देन डाउन, इनहेल एंड डाउन. One more round, we will do it. Exhale and then press it towards your buttocks. Inhale and down. Relax. The next one, we will do the Bhujangasana. Both the palms, keep it beside your chest. Keep your feet together. Inhale and up. Look at the up. ये आपके स्पाइन को काफी अच्छा है. आपके जिनको शोल्डर में पेन है उनके लिए भी काफी अच्छा है. वो ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं. एक्सेल एंड डाउन. अगेन इनहेल एंड अप. लोअर एब्डोमिनल मसल्स के लिए भी काफी अच्छा है. पेल्विक बोन के लिए काफी अच्छा है. एक्सेल एंड डाउन. रिलैक्स. Relax. The next one, we will do the Shalvasana. Both the palms keep it under your thighs. And this time you have to raise your right leg, chin on the floor. Chin आपका सामने की तरफ होना चाहिए. And then inhale and raise your right leg up without bend your knees. ये साइटिका नर्व्स के लिए काफी इफेक्टिव है. बिकॉज मैक्सिमम हम लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे हम लोग वर्क करते हैं, सिटिंग पोस्चर जो हमारा वर्क है, एक्सेल एंड डाउन, ये हमारे पूरे कमर पे पेन नहीं होता है. साइटिका नर्व्स मीन्स कहीं राइट या लेफ्ट किसी एक जगह पे पॉइंट पे पेन होता है. अपोजिट लेग, इनहेल एंड अप. नी को सीधा रखने का कोशिश करेंगे, नी बेंड नहीं होगा, तब इसका प्रॉपर इफेक्टिव आपको रिजल्ट पता चलेगा. एक्सेल एंड डाउन. सांस लेते वक्त इनहेल एंड अप. Exhale and then down. Inhale and up. Exhale and then down. Relax. Release your hand and turn towards your back.
टर्न टूवर्ड्स योर बैक, पीठ के बल लेट जाए, टर्न हो जाए। सेतुबंद और रिलैक्सेशन करते हैं। सेतुबंद कमर का काफी एक्सरसाइज। Body will be loose, no heaviness, no tightness within your body. It's completely loose on the floor. It's completely loose on the floor. Inhale deeply and then exhale. The next one, we will do the Setu Bandhasan. This is good for your back pain. So all of you fold your legs. दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिएगा और दोनों हिल्स जो आपके बटक्स के क्लोज होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। जो लोग अपने एंकल को पकड़ सकते हैं वो लोग एंकल को पकड़ लेंगे, जो नहीं पकड़ सकते हो अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के बगल में रखोगे। सब कोई, बहुत लोग एंकल को नहीं पकड़ पा रहे, फोल्ड फोर्सफुली नहीं करना है, दोनों हाथों को अपने बॉडी के बगल में रखिएगा। इनहेल एंड रेज योर बटक्स अप, अपने कमर को उठाना है ऊपर की तरफ, सांस लेते वक्त, पैर नहीं कमर, सिर्फ कमर उठेगा। यस, हिल्स किसी का जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए, सांस छोड़ते वक्त नीचे। अगेन इनहेल एंड अप, ये आपकी कमर को काफी अच्छा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। एक्सेल डाउन, जब भी आपको कमर में अगर प्रॉब्लम हो तो ये पोस्चर आप 3 से 4 बार ब्रीथ के साथ में करके देखिएगा, काफी रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड मिलेगा। एक्सेल एंड देन डाउन, सांस छोड़ते वक्त नीचे, फिर से सांस लेते वक्त इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, रिलैक्स, स्लोली पुट योर लेग्स डाउन, put your legs down, relax your legs, relax your physical body, eyes closed, दोनों आपके बॉडी के बगल में, palms facing upward direction, दोनों हथेलियां सीलिंग की तरफ होनी चाहिए, जमीन की तरफ नहीं। टर्न कर दीजिए अपने palms को, देन आंख बंद, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ते हुए take deep breath, inhale deeply and then exhale, inhale deeply and then exhale। जब आप सांस ले रहे हैं तो फील करना है आपका स्टमक कम्स अप एंड देन एक्सेल इट गोज डाउन। Inhale and up and feel the freshness and lightness within your body, and then exhale and free from all the letharginess, heaviness and tightness within your body and mind. Inhale deeply and then exhale. No thoughts in your mind, is completely thoughtless. Only concentrate on your breath. सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते वक्त inhale deeply and then exhale. Inhale deeply and then exhale. Relax your physical body, relax your mind, and feel the freshness and lightness. Inhale deeply and then exhale. Relax your body from your toes to tip of your head. Relax your each muscles, each joints. And relax yourself. Rub your palms nicely. Give palming twice. Again, one more round, rub it nicely and give palming twice. Turn towards the left side and come to the sitting posture.
Turn towards the gaze. Come to the sitting posture. Sukhasan यहाँ पद्मासन में जिसमें भी आप comfortable में, you can sit in that posture. And then welcome to Seema ma'am, जो आपको प्राणायाम की जानकारी देंगे और प्राणायाम आप लोगों को. Thank you all of you. Thank you, Nikki. Good morning, everyone. अब तक निकी ने आपको बहुत सारे आसन करवाए हैं और साथ ही उनके बेनिफिट भी बताए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रतिदिन इसकी अभ्यास करेंगे और स्वस्थ रहेंगे. चलिए, मैं आप सभी को भी प्राणायाम के बारे में जानकारी दूंगी. प्राणायाम जिसका अर्थ होता है सांस और निश्वास की गति को नियंत्रण करना, रोक कर रखना और निकालना. आइए हम सब मिलकर अभी कपालभाति की अभ्यास पर जाते हैं. पहले सभी सुखासन में बैठ जाएंगे. क्लोज योर आईज. टेक अ डीप ब्रीथिंग. अपने आंखें बंद रखें. शरीर को स्थिर कर ले. दोनों नासाग्र से गहरी लंबी सांसें लेकर और वृक्ष स्थल तक फैलाते रहें. उदर की मांसपेशी को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सांस छोड़ें और ग्रहण करें. इसके बाद गहरी लंबी सांसें अंदर ले और धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे. इसे करने से हमें अस्थमा, सांस नाली सभी में बहुत फायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ पाचन तंत्र जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं. याद रखें, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप या नासिका में अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो इसे ज्यादा ना करें. इसी क्रिया को हम दोबारा दोहराएंगे. मन शांत रखते हुए इसे करना है. रिलैक्स. अब हम आते हैं अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं. हम नाड़ी शोधन की ओर बढ़ेंगे. मन शांत, मस्तिष्क पूरी तरह शांत. रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर फुल बॉडी. क्लोज योर आईज. आंखें बंद रखिए. मेरुदंड एवं सिर को धीरे से सीधा करके रखें और आंखें बंद रखें. कुछ गहरी सांसें लेना है आपको और शरीर को पूरी तरह स्थिर कर देना है. ज्ञान मुद्रा में अपने हथेली को रखना है. अपने एक हाथ को नासिका पे रखिए. अपने नासाग्रह में अपने दोनों फिंगर को रखना है और धीरे धीरे सांस लेनी है. याद रखिए, हमारे बाएं तरफ चंद्रमा रहते हैं और दाएं तरफ सूर्य. हम चंद्रमा को अपने अंदर प्रवेश करके अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर कर देंगे और फिर सूर्य को छोड़ते हुए अंदर की ओर लेंगे. गहरी लंबी सांसें लेते रहें. मन शांत रखें. मस्तिष्क पूरी तरह शांत. बहुत रिलैक्स से सांस लेनी है, प्रेशर नहीं देनी है. हम दूसरे नासाग्र को बंद करेंगे और दूसरे तरफ के नासाग्र को छोड़ेंगे. गहरी लंबी सांसें भरते रहेंगे. इस स्थिति में आप अपने मन को पूरी तरह शांत रखें. कपालभाति करने से हमारा मन शांत होता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है और साथ ही साथ हमारा जीवन में शक्ति प्रदान होता है और चिंता से बहुत दूर चले जाते हैं हम. अब हम रोटेशन की ओर जाएंगे. एक नासाग्रह से सांस खींचेंगे, दूसरे नासाग्रह में सांस को छोड़ेंगे. फिर जिससे हम सांस ले रहे हैं उसके ऑपोजिट छोड़ेंगे. बड़ी प्यार से इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा रखेंगे. इसे अगर आप प्रतिदिन करेंगे, विश्वास कीजिए इससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी. आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा प्रदान होगी. आप बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाओगे.
तो मैं उम्मीद करती हूँ इसे आप प्रतिदिन करोगे। नेक्स्ट हम आते हैं रिलैक्स तितली प्राणायाम की ओर। तितली प्राणायाम जो हम ठंडी के दिनों में नहीं करते हैं, गर्म के दिन में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तितली प्राणायाम। आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, अपने टंग को बाहर की ओर निकालेंगे और एक पाइप की तरह बना लेंगे और गहरी लंबी सांसें खींचेंगे और सांस को अंदर लॉक कर लें और अपने नासाग्र से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फिर से गहरी लंबी सांसें भरेंगे, पाइप निकालते हुए टंग को बाहर निकालिए, पाइप जैसा फोल्ड कर ले, गहरी लंबी सांसें खींचे, सांस को अंदर रोक कर रखें और अपने नासाग्र से धीरे धीरे निकाल दें। वंस मोर, फिर से एक बार करेंगे हम। तितली प्राणायाम के फायदे हैं रक्त को ये शुद्ध करता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है और भूख प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है, तो आप इसे जरूर करें। रिलैक्स। अब हम आते हैं भावरी प्राणायाम की ओर। भावरी प्राणायाम का अर्थ होता है भौरे की तरह गुंजन। हम दोनों कानों को बंद कर लेंगे, अपने तर्जनी फिंगर को फोरहेड पर रखेंगे, मध्य उंगली को आईज पर रखेंगे और अनामिका उंगली को अपने होठों के दोनों तरफ रखेंगे। उसके बाद हम नाभि से सांस खींचते हुए गहरी लंबी सांसें भरते हुए भौरे की गुंजन करेंगे। Once more. Once more. दोनों हाथों को रब करें, palm to rub your palm and touch your eyes. ये भावरी प्राणायाम करने से आपके तनाव दूर होते हैं, चिंता दूर होती है, साथ ही साथ हमारा आपकी मस्तिष्क और तंत्रिका जो है वो बहुत फायदा होता है और आप एकाग्र होते हैं, मन शांत बहुत ज्यादा होती है। चलिए हम आते हैं अब ध्यान मुद्रा की ओर। दोनों हथेलियों को अपने सर पर रख दें, रिलैक्स कीजिए, इसी मुद्रा में बैठना है आपको। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मन शांत, मस्तिष्क पूरी तरह शांत रखेंगे, गहरी लंबी सांसें लेते रहेंगे, अपने मन में अच्छे विचार लाते रहें और कुछ क्षण के लिए परमात्मा से जुड़ जाए। चलिए कुछ क्षण के लिए हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इसी स्थिति में बैठे हुए अब परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, मन को शांत करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और परमात्मा से जुड़ते हुए ये कहें कि हे परमात्मा, छोटा सा मुस्कान दीजिए परमात्मा को और कहे हे परमात्मा, कोटि कोटि धन्यवाद ये सुंदर सी सांस और ये सुंदर सा शरीर और ये सुंदर सा जीवन मुझे देने के लिए। ये कहते हुए फिर से एक बार परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं के चलते हम यहाँ पे हैं और इस सांस को ले पा रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
Inhale, exhale. इससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हम एकाग्र होते हैं। हमारे अंदर कितनी भी टेंशन हो, अगर हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारे मन के अंदर से जितनी भी चिंताएं, जितने भी टेंशन है, सब धीरे धीरे बाहर की ओर चले जाएंगे। नेगेटिव हटते हुए पॉजिटिव आपके अंदर चली जाएंगी और चारों तरफ के वातावरण में आपको सिर्फ पॉजिटिव दिखेगी। नेगेटिव आपकी जिंदगी में कभी प्रवेश नहीं करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा प्राणायाम करेंगे। अगर सुबह हो सके तो आप 10 मिनट अपने शरीर को जरूर दे सकते हैं, क्योंकि शरीर हमारा है और ये जब तक सही रहेगा तब तक हमारी दुनिया में पूरी पूछ रहती है। तो आप प्लीज प्राणायाम जरूर करें। Drop your palm and touch your eyes. अब हम आते हैं नमस्ते पोस्चर की और दोनों हाथों को जोड़ लें। फाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा करें और परमात्मा से जुड़ जाएं। आरंभ करते हैं प्रार्थना। भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निराकार हो, सबका मंगल हो, कोई दुख आपको कभी न छुए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैप्पी इंटरव्यू। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आज से शुरू योग रेगुलर रोज करें, योग करें, योग रहे निरोग, यही हमारी कामना है। ऐसे तो योग करके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटीज जो आती हैं, ये आपके अगर परमिशन हो सर के, तो मैं 2 पोस्चर्स इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो लोग एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किस तरह से ये पोस्चर्स करते हैं, योगा स्पोर्ट्स पर्पस में दिखाना चाहते हैं। हाँ सर, जाओ बेटा।
शांति बनाए रखें, करें योग, रहे निरोग, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम का समापन से पूर्व मैं निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आकर के आज के योगा दिवस के अवसर पर सबको आशीर्वचन दें। आज के इस योगा दिवस कार्यक्रम के आज तो मुख्य अतिथि ही कहना चाहिए हमारे योगाचार्य एवं उनके दल, मेरे सभी सहयोगियों संस्थान से और अन्य केंद्रों से जुड़े हुए, मैं देख रहा हूँ सुकना सुकना से जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं और मांडर से भी जुड़े हुए हैं। आप सभी साथीगण, सहयोगियों, बहनों, भाइयों एवं बच्चों, यहाँ हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची भी है, आप सभी को आज इस योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं और हमने देखा है कि इसके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं, अच्छा लोगों की ओर से रिस्पांस आया है और ये तब तक संभव नहीं होता जब तक हमने स्वयं उसके अच्छे परिणामों को अनुभव ना किया हो। पूर्व में भी हम लोगों ने 1 महीने पहले जब एक प्री योग दिवस मनाया था जिसमें यही बातें कही थी, मैं फिर से उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसका अर्थ समझें और योग आसनों को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में लाएं, यही इसका संदेश है। और मैं मानता हूं कि जब तक इसको आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको करना ही है। तो अनुभव तब होगा जब आप करेंगे, तो करिए, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जरूर करके देखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फायदा नहीं होता है तब जरूर किसी योगाचार्य से मिलें, अगर और जानना चाहते हैं तो उनसे सीखें, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये बात अलग है कि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो शायद उसका लाभ ना मिले। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन के जो ये हमारी दिनचर्या है, जो हमारी राह है, ये सरल और कठिन बनाना हमारे कुछ हद तक हमारे हाथ में भी होता है और स्वास्थ्य उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर सरलता से उसको करना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहना है तो बहुत सारी निगेटिविटी से आपको दूर रहना पड़ेगा, और निगेटिविटी से दूर रहना है तो कुछ समय आपको अपने शरीर को देना होगा, और वो योग से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। योग करें, छोटे मोटे जो आप कर सकते हैं, अपने अपनी उम्र के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करें। मैंने यहाँ पर भी हमेशा प्रमोट किया है कि लोग ये सब करें, स्पोर्ट्स भी करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक रेसिडेंशियल कैंपस नहीं है, वरना शायद मैं अभी तक एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कॉम्प्लेक्स शुरू कर चुका होता। लेकिन मैंने देखा कि उसका लाभ उतने ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं अपने किसी भी सहयोगियों को देखता हूँ कि वो बैडमिंटन खेलने जाते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे काफी लोग खेलते हैं,
मैं नहीं खेल रहा होता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारे यहाँ से कुछ लोग खेल रहे हैं। ये सब क्रियाएं हैं जो आपके इसमें पॉजिटिविटी लाती हैं, और उस पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट ना केवल आपके शरीर को होता है, बल्कि आपके परिवार में होता है, और आपके आसपास सोसाइटी में होता है, और अंतिम रूप से हमारे कार्यालय की गतिविधियों में उस पॉजिटिविटी का अर्थ फायदा होता है। इसमें कोई दो मत निश्चित ही नहीं। तो इसको जरूर करें। पुनः आप सभी को योगा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के योगाचार्य एवं उनके दल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री सुचित बनर्जी जी कि उनके परिवार में अभी बहुत दुखद इवेंट होने के बाद भी उन्होंने इसके लिए हमें सहर्ष स्वयं आगे आकर सहमति प्रदान की कि मैं आऊंगा। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि संस्थान के लिए उनकी एक प्रतिबद्धता इसमें दिखती है। और उनके जो दल यहाँ पर आए हैं बच्चे, मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ ये देख के कि हमारे यहाँ योग आसन इस अवस्था में है कि अब बच्चे, नई जनरेशन उसको फिर से, जो हमारे ऋषि मुनियों के बाद से बीच में कुछ गैप 60-70 साल में हम लोग भूलने लगे थे, शायद ही कुछ लोग करते थे, अचानक फिर से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश ही नहीं, हमारे समाज ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य नहीं, हमारा कार्यालय ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश, देश और विदेश तक इसके गूंज दूर दूर तक जाएगी और जा रही है। इसी आशा के साथ आप लोगों को, जो आज सुबह सुबह बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, हमारे सहयोगी सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। हम नाम डालते हैं निक्की शर्मा जी। निकी शर्मा जी से निवेदन है कि निदेशक महोदय से मोमेंटो ग्रहण करें। सीमा राय जी। पहले से निवेदन है कि संस्थान का मोमेंटो निदेशक महोदय से ग्रहण करें। सृष्टि राय जी से निवेदन है कि संस्थान का मोमेंटो, यादगार मोमेंटो निदेशक महोदय से ग्रहण करें। योगाचार्य हमारे बीच सबके अगुआ सुशील जी से निवेदन है कि वो निदेशक महोदय से संस्थान का एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें और इसको हमेशा बनाए रखें। अब मैं सबसे पहले योगाचार्य महोदय का ही निवेदन करूंगा कि आप निदेशक महोदय से चादर, निदेशक महोदय, योगाचार्य महोदय को चादर भेंट करेंगे। जी। सीमा जी निदेशक महोदय से अंग वस्त्र ग्रहण करेंगे।
हाँ, निक्की शर्मा जी हमारे बीच जीसीआर महोदय है, उनसे अंग वस्त्र ग्रहण करेंगे और संस्थान को हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे, यह आशा है। एलिस तिर्की जी, सृष्टि राय जी को अंग वस्त्र योगेश्वर मिश्रा साहब देंगे। आखिर में बसंत जी से निवेदन करूंगा कि जनगण मन के साथ हाँ योगाचार्य महोदय बड़ी मांग है कि योगाचार्य महोदय कुछ पोस्टर रखे हैं जिसको हम डेली कर सके। तो ये करें, हम कर ही नहीं सके तो क्या करें। मंगलाचार्य वाला करिएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कार्यक्रम समापन से पूर्व सबसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से जो भी योगा सीखे हैं उसमें से कुछ न कुछ जरूर अपनाएंगे और हमारे संस्थान की ओर से कुछ फलाहार है वो फल ग्रहण करेंगे।